Hello students, Assalamu alaikum. I hope you are doing good. In this video, we will study the concept of real numbers, chapter number 2. Book है हमारे पास 9th PTB. As you can see, the exercise 2.1 is on page number 38. In exercise 2.1, exercise number 2.1, the first question is identify. Question number 1 is identify which of the following are rational and irrational number. We have to understand what is rational number and what is irrational numbers. The definition of rational number is the numbers that can be written in P by Q form is called rational numbers. आसान अल्फाज के अंदर ऐसे नंबर जो अपॉन की फॉर्म में लिखे जाते हैं तमाम नंबर्स को रैशनल नंबर कहा जाता है. Irrational number, the number that cannot be written in P by Q form. वो कौन से नंबर हैं? वो हमारे पास होते हैं अंडर रूट फॉर्म, √3 एंड √5. These are the examples of irrational numbers. It means, as you can see on your book, the first part is √3. √3 is a irrational number. 1/6 P by Q की फॉर्म में है, इसका मतलब है वो रैशनल नंबर है. ट्राई कीजिएगा इसके सारे पार्ट सॉल्व करने की. Inshallah, I hope you will solve all the parts. Now, question number 2. In question number 2, convert the following fractions into the decimal fractions. The first part is 17 divided by 25. How we can convert a rational number into a decimal fraction? This portion is known as numerator, and the portion which is below the fraction bar is known as denominator. It means numerator will be inside and we will divide with denominator. How we can divide? As you can see, 17 is less than 25. It means we have to place a point. After placing a point on the answer, we can write 0. It means 25 6 are, that will becomes 150. When we will subtract, the answer will be equals to 20. As we have already used decimal, it means we can write 0 here. 25 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा. It means the answer of 17 divided by 25, we simply write 0.68 is the required answer. सादा अल्फाज के अंदर जब भी आपने कोई भी रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बेटा आपने सिर्फ और सिर्फ उसको डिवाइड करवा देना है. न्यूमिनेटर की जो वैल्यू है वो अंदर आएगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू बाहर रहेगी. अप टू 2 डेसिमल आप उसका जो है, अगर वो डेसिमल में आ रहा है, अप टू 2 डेसिमल काफ़ी है. ये तो 2 डेसिमल पे आके ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया पॉइंट. अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कि चलता चला जा रहा है तो आपने सिर्फ उसका 2 डेसिमल तक आंसर फाइंड आउट करके दे देना. नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statements are true and which are false? In first part, in question number 3, first part is 2/3 is a irrational number. उसके बकौल 2/3 is a irrational number. But हमने definition में पढ़ा है any number that can be written in P by Q form is a rational number. It means this is false statement. Second part is pi is a irrational number. हमने पढ़ा हुआ है कि जो नंबर है 2/3
3/5। जो नंबर p/q की फॉर्म में है उनको बोला जाता है रैशनल नंबर्स, और जो अंडर रूट की फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको भी क्या बोला जाता है, इर्रेशनल नंबर। इट मीन्स पाई इज अ इर्रेशनल नंबर। यस, दिस इज ट्रू, पाई भी इर्रेशनल नंबर ही होता है। फिर हमारे पास इसका थर्ड है थर्ड पार्ट इज 1/9। 1/9 is a terminating fraction. Now we will discuss the difference between terminating and non-terminating fractions. 1 divided by 9, it means 1 inside we have to divide with 9. 1 is less than, it means we will place a value of 0 after taking point. 9 ones are 9 minus, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, पॉइंट लगाया हुआ है इसलिए हम 0 ऐड कर सकते हैं। 9 अगेन वंस आर 9, माइनस करेंगे 0 9 10 9। ये बेटा ऐसे चलता ही रहेगा, ये कभी भी आंसर ख़त्म नहीं होगा। इट मीन्स दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज दिस? नॉन टर्मिनेटिंग। इसका आंसर कभी रुकेगा ही नहीं, ये चलता चला जाएगा। तो बुक वाला कह रहा है 1/3 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, बट हमने अभी सॉल्व करके देखा दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। इट मीन्स स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ वी हैव पार्ट 4। इन पार्ट 4 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फंक्शन। 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फंक्शन। हमने अभी पढ़ा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को बेटा हम कैसे चेक कर सकते हैं? बाय डिवाइडिंग देम, बाय डिवाइडिंग them. How we can divide 3 divided by 4? 3 will be inside, we have to divide with 4. As you can see 3 is less than 4, पॉइंट लगाएंगे 0 लगा दिया। 7 4s are 28 minus 2, ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है, अगेन 0 4 5s are 20। It means the answer of 3/4 is equals to 0.75. आंसर एक जगह पे आके रुक गया, आंसर एक जगह पे आके रुक गया। It means terminating fraction। अगर पिछली एग्जाम्पल की तरह चलता चला जाता तो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। इट मीन्स 3/4 is a terminating fraction, that is a true statement. Now the last part of this true and false is 4/5 is a recurring fraction। इसको भी डिवाइड कीजिए। When we will divide 4 divided by 5, 4 will be inside, 5 is outside. It means पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा दिया तो 8 आ गया हमारे पास। 8 5s are 40, 8 5s are 40। इसका मतलब है इसका आंसर हमारे पास आ गया है 0.8। ये तो टर्मिनेट हो गया, ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। लेकिन हमने इसको बताना था कि रेकरिंग डेसिमल विच इज़ फॉल्स। ये क्या है? फॉल्स। अब सवाल ये है रेकरिंग डेफिनेशन होता क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड CCURING रेकरिंग डेसिमल्स, ये दोनों जो हैं एक ही चीज़ के दो नाम हैं। कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो उसी को रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। Now we will solve the question number 4. In question number 4, represents the following numbers on the number line. The first number is 2/3. The second number is -4/5. The third number is 1 whole 3/4, and the number is next fourth number is
-2 5/4 एंड द लास्ट पार्ट इज, एक आपके लिए होमवर्क के लिए हमने छोड़ दिया 5√। बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं। हाउ वी कैन राइट 2 divided by 3 ऑन अ रियल नंबर लाइन। हाउ वी कैन, कुछ बच्चे कैलकुलेटर से 2/3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो पॉइंट्स में आ जाता है और वो पॉइंट्स को उन्होंने 1 2 1 एंड 2, दिस इज़ योर रियल नंबर लाइन। हर बच्चा जानता है कि 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, राइट हैंड साइड के ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ख़ास किस्म का पैटर्न है जिससे मैं बच्चों को समझाता हूँ कि बेटा यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे होल की फॉर्म में कोई चीज़ नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही। आपने आर्जी तौर पे इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे मैं लाइट सा 0 लिख रहा हूँ, लाइट सा क्या लिख रहा हूँ, 0 लिख रहा हूँ। अब आपने इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, अंडरस्टैंड ये करना है कि ग्राफ बनेगा किससे आगे, ग्राफ बनेगा 0 से आगे। ग्राफ किससे आगे बनेगा जी, 0 से आगे। मैं यहाँ पे एरो लगा रहा हूँ, ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, पेपर के अंदर आप इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। ग्राफ बनेगा 0 से आगे, पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव नंबर है। फिर 3, ये डिनोमिनेटर्स आपको बताएंगे, ये डिनोमिनेटर जो है आपको ये बताएगा कि इसके टुकड़े कितने करने हैं, आपने कितने टुकड़े करने हैं इसके 3 टुकड़े करने हैं। और ये आपको बताएगा मेरा आंसर क्या है, क्या करेगा, मेरा आंसर क्या है, मेरा जवाब क्या है। अब ये सारा का सारा जो मैंने ड्रा किया है इसको हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। ग्राफ बनेगा 0 से आगे, ओके जी, ग्राफ बनेगा 0 से आगे, यहाँ पे आ गया, इसका मतलब है कि ग्राफ इधर बनेगा, इसका आंसर इधर आएगा। मैंने इसके टुकड़े कितने करने हैं बेटा, टुकड़े कितने करने हैं इसके, 3 पीसीस करने हैं। कितने पीसीस करने हैं, 3 पीसीस करने हैं। अब 0 से लेके 1 तक के 3 पीसीस करने के लिए मुझे 2 लाइन्स लगानी पड़ेंगी। मैंने 2 लाइन्स आपके सामने लगाई। एज यू कैन सी नाउ वी हैव 3 पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। यू कैन से इंटरवल्स, द फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल एंड द थर्ड इंटरवल। जितने आपने उसके पीसीस करने हैं, जितने टुकड़े करने हैं, उससे एक कम लाइंस लगाएंगे। इज इट क्लियर। 0 से आगे इंप्लीमेंट कर दिया। टुकड़े कितने करने थे, 3, 1 2 एंड 3, 3 टुकड़े भी हो गए। आंसर क्या होगा, सेकंड वाला टुकड़ा। मेन पॉइंट को, मेन स्टॉप को इग्नोर करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। इट मीन्स आंसर इज 2 divided by 3, इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इज इट क्लियर। नाउ वी विल सॉल्व द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बताया गया है -4/5। सेकंड पार्ट में बताया गया है -4 divided by 5। इसको भी मैं उसी तरह लिखता हूँ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। 0 खुद से आपने ये रफ वर्क में करना है। ग्राफ बनेगा 0 से आगे, लेकिन विच साइड, नेगेटिव साइड। 0 से आगे ग्राफ बनेगा। इसके पीसेस कितने करने हैं, इसके टुकड़े कितने करने हैं, इसके टुकड़े करने हैं 5। 5 टुकड़े करने के लिए आपको लाइंस कितनी लगानी है, 4, 1 2 3 एंड 4। चेक कीजिएगा 5 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 और 5। यस, 5 टुकड़े हो गए। हमारा आंसर कौन सा होगा, 4th। मैंने आपको पहले बताया मेन फुल स्टॉप को नहीं छेड़ेंगे, 1 2 3 एंड 4th। इसका मतलब है ये आपका आंसर आ जाएगा -4 divided by 5। इज इट क्लियर। कोई भी इशू हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 1 whole 1/3, 1 whole 1 divided by 3। नंबर लाइन 0 1 2 1 2, नेगेटिव। थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ग्राफ बनेगा 1 से आगे, इसका मतलब है ग्राफ किससे आगे बनेगा, 1 से आगे, पॉजिटिव साइड है। टुकड़े कितने करने हैं, 3 टुकड़े करने हैं। 3 टुकड़े करने के लिए, डिवाइड करने के लिए कितने पार्ट्स लाइन लगानी पड़ेंगी, 1 एंड 2। नाउ यू कैन सी 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा और 3 टुकड़े। इसका मतलब ये है आंसर कौन सा होगा, पहला स्टॉप, मेन को छोड़ते हुए पहला स्टॉप। इट मीन्स द आंसर इज 1 whole 1/3। आई होप कि आप इसी तरह से सारे के सारे पार्ट सॉल्व कर सकते हैं एक्सेप्ट 5 के। इसको चेक करते हैं, 5 वाला सॉल्व करते हैं अब इसका लास्ट पार्ट।
नाउ वी विल सॉल्व अंडर रूट 5. 0, 1, 2, 1, 2, 3 and 3. अब मैं इधर एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ. फिगर ड्रॉ मैं करता हूँ. फिजिक्स सब बच्चों ने पढ़ी हुई है. फिजिक्स सब बच्चों ने पढ़ी हुई है 9th की. उसके अंदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपने पढ़े होंगे. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वाई. ये मैं इधर 1 लिख रहा हूँ. यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू है y की 1 है, x की वैल्यू 2 है. अगर हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, पैथागोरस थ्योरम क्या बताता है? पैथागोरस थ्योरम वहाँ पे लगता है जहाँ पे राइट एंगल बन रहा हो. बेस परपेंडिकुलर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर. इट मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. दिस इज द फार्मूला फॉर Pythagoras theorem. What is the value of hypotenuse? We don't have. What is the value of base? 2. What is the value of base? 2. 2 square plus 1 square, 4 plus 1, hypotenuse square, 5, hypotenuse square. Value of hypotenuse, that will be equals to 5 under root. Value of that will be equals to 5 under root. It means the value of 5 under root is this. याद रहे, जो इर्रेशनल नंबर अंडर रूट है ये उसका क्या आ गया है? सोल्यूशन आ गया है. क्या आ गया है? सोल्यूशन आ गया है. अब ये मैं जो 1 और 2 लिखे हुए हैं इनको मैं वक्ती तौर पे अरेज कर रहा हूँ. जब हमारे पास कंपास होगी, ये है लेंथ 5, जो आपको उसने क्वेश्चन दिया हुआ था ना, उसकी आपने लेंथ फाइंड आउट कर ली है. वो इस लाइन पे लाई नहीं करेगा बिकॉज इर्रेशनल नंबर है. अब इर्रेशनल नंबर का यहाँ तक लेंथ कितनी है बेटा? 0 से लेके यहाँ तक इस पोजीशन वेक्टर तक इसकी लेंथ है 5 अंडर रूट. इट डजेंट मीन कि ये यहाँ पे इतनी होगी. इट मीन्स वी विल यूज़ कंपास बाय, यहाँ पे आप अपने कंपास का निब रखेंगे एंड देन वी विल ड्रा अ लाइन. ड्रा अ लाइन मतलब कंपास की मदद से जब आप लाइन ड्रा करेंगे तो फिर ये जब जिस जगह पे इसको टच करेगा, इसका मतलब है रियल लाइन के ऊपर 5 अंडर रूट, ये मैं एक्स्ट्रा डॉट लगा रहा हूँ, वो यहाँ पे मार्क करेगा. अंडर रूट वाली कोई भी वैल्यू होगी एज अ रिजल्टेंट के तौर पे डील हुई है, वो यहाँ पे ही होगी रिजल्टेंट. पढ़ा हुआ है आपने बेस हेड टू टेल रूल अगर लगाएं फिजिक्स के अंदर, हेड टू टेल, अगले की टेल के ऊपर उसका हेड, दिस इज़ नोन एज द रिजल्टेंट. और अगर इस रिजल्टेंट को आप एक्स एक्सिस के ऊपर लेके आना चाहते हैं तो हमें उसको गिराना पड़ेगा. उसको बोलते हैं, उसके ऊपर कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स के अंदर? प्रोजेक्शन. फिजिक्स के अंदर वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ 5 ऑन एक्स एक्सिस. तो वो इधर नहीं गिरेगा 2 वाली जगह पे, इधर नहीं गिरेगा, वो थोड़ा सा उधर गिरेगा बिकॉज वी विल यूज़ द कंपास. सर्कुलर फॉर्म के अंदर आएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. फिर भी कोई इशू हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक दफ़ा फिर से डिफाइन कर दूंगा. नाउ वी हैव सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. यस, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. हर फाइनल पेपर पीटीबी, वो फैसलाबाद का हो, लाहौर का हो, गुजरांवाला का हो, किसी भी इलाके का पेपर हो, उसके अंदर आपको एक आधा पार्ट इसके अंदर से नज़र लाजमी आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5 डिवाइडेड बाय 9. ये दो नंबर्स हैं. कहता है इनके सेंटर के अंदर कोई एक नंबर जो रैशनल नंबर हो वो फाइंड आउट करके दें. हम यूज़ करेंगे यूजिंग द टेक्निक ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला. मिड पॉइंट फार्मूला. मिड पॉइंट फार्मूला की एग्जांपल ऐसे है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंडिंग एट 10. हम इसके सेंटर में कोई नंबर निकालना चाहते हैं. मिड पॉइंट फार्मूला कहता है जी स्टार्टिंग पॉइंट योर एंडिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय 2. स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड करवा दो.
इसका मतलब है आपका आंसर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, द आंसर विल बी 6। इन दोनों का सेंटर कितना मिल गया आपको? 6 मिल गया। यही सेम कॉन्सेप्ट हम इस पे अप्लाई करेंगे। वी विल जस्ट ऐड दीज टू नंबर्स एंड विल डिवाइडेड बाई 2। बाई मिड पॉइंट 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9 होल डिवाइडेड बाई 2। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 9 4 आर 36 एलसीएम आ गया। जो भी एलसीएम आता है उसको हम रफ वर्क के अंदर, जो भी एलसीएम आता है उसको रफ वर्क के अंदर 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9, 36 यहाँ पे भी, 36 यहाँ पे भी, ऐसे लिख देते हैं। 4 इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगा, 9 आ जाएगा, 9 3 आर 27 आ जाएगा। 9 इसको कैंसिल करेगा, 4 आ जाएगा, 5 4 आर 20 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? 2 पड़ा हुआ है। बोथ द अबव वैल्यूज विल बी एडेड, 27 प्लस 20 दैट विल बिकम्स 47 और 2 के साथ 36 आन मिलेंगे तो ये हो जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 72। दिस इज द नंबर विच लाइज इन बिटवीन देम। ये उन दोनों के बिल्कुल सेंटर में लाई करता है, बिल्कुल सेंटर पे, ना पॉइंट इधर ना पॉइंट उधर। दिस इज द एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट ऑफ 3/4 and 5/9। Now we will discuss the last question of this exercise, that is question number 6. Sorry. Question number 6. Express the following recurring decimals as the rational number। कोई चीज़ एक रिपीट हो रही है बार बार, recurring decimal उसी को बोला जाता है। कहता है उसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख के बताएं कि उसको जनरेट करने वाला कौन था। द फर्स्ट पॉइंट इज 0.5 बार। कहता है जी ये recurring decimal है, ये बताएं कि इसको जनरेट करने वाले कौन से साहब थे। सबसे पहला काम आपने इसको x सपोज कर लिया करना है। लेट से x इज इक्वल्स टू 0.5। रैकरिंग है, 5 पे बार है, इट मीन्स 5 इज़ रिपीटिंग। 5 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। हमेशा आपने इसको इक्वेशन 1 कह दिया करना है। देन एज यू कैन सी कितने नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं? ओनली 1 नंबर। इट मीन्स आपने उसको 1 0 वाले से मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई 1 0 वाला नंबर मल्टीप्लाई विद 10 ऑन बोथ साइड्स। 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय x, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5555 एंड सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम्स 10x आफ्टर मल्टीप्लाइंग 5.5555 एंड सो ऑन। आफ्टर मल्टीप्लाइंग से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। Subtract equation 1 from equation 2। छोटी इक्वेशन को बड़ी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। इक्वेशन 1 इज स्मॉलर देन द इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो इसका मतलब है 10x माइनस x, 5.555 एंड सो ऑन। माइनस करवाया उसके अंदर से 0.5555 एंड सो ऑन। ऑन लेफ्ट हैंड साइड दैट विल बिकम्स 10 में से एक x निकालेंगे तो बेटा 9x बचेंगे और 5.555 में से 0.555 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बच जाएगा। इसको इग्नोर करेंगे, पॉइंट के बाद वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 9। ये वो p/q फॉर्म है जो ये रैकरिंग डेसिमल क्रिएट करती है। व्हेन वी विल डिवाइड 5 डिवाइडेड बाय 9 द आंसर विल बी of the form of 0.5555. Is it clear? Now the second part of this, second or third same है। x is equals to, let's say x is equals to 0.13, 0.13 बार है, it means repeating 0.infinite times, ये चलता चला जा रहा है। Say this is your equation number 1। अब कितने पे बार था? 2 पे। इट मीन्स मल्टीप्लाई विद
2 zeros, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 मल्टीप्लाई बाय x, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.13 13 13 एंड सो ऑन. लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 100x. जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली 0.2 डेसिमल राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र करेगा. 13.13 13 13 एंड सो ऑन. अगेन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. बड़ी में से छोटी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे. 100x माइनस x दैट विल बी इक्वल्स टू 13.13 13 13 माइनस 0.13 13 13 एंड सो ऑन. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 99x, यहाँ पे 13, x इज इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय 19. ये वो रैशनल नंबर है जो 0.13 13 13 जैसा रैकरिंग फ्रैक्शन, रैकरिंग डेसिमल क्रिएट करवाएगा. ये तो थी हमारी आज की एक्सरसाइज दैट वाज 2.1. अगर बेटा इसके अंदर आपका फिर भी कोई भी इशू हो, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन कमेंट्स बार. इंशाल्लाह हम आपकी डिफ़िकल्टी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे. अगर आपको पसंद आए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज लेके आऊँगा. तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.